السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ، اور آج کی کتاب ہے شعراء آفاق اردو ناول اداس نسلیں. واہ جی واہ. عبداللہ حسین کا یہ شاندار ناول دراصل پنجاب کے کلچر پر پہلا کمپیکٹ ناول ہے جو اردو زبان میں لکھا گیا ہو. جس طرح پارٹیشن کے آس پاس کی کہانیاں آب گم جیسے ناولوں میں اور خدا کی بستی جیسے ناولوں میں ڈسکس ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح یہ ایسٹ پنجاب کی کہانی ہے. روشن پور گاؤں ہے پٹیالہ کے قریب، یہ اس کا بیک ڈراپ ہے. لیکن یہ ناول بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا ملغوبہ ہے. عبداللہ حسین اپنے اسلوب کی وجہ سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں کہ بہت اچھی نریشن ہے ان کی. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ عبداللہ حسین اردو کے چارلز ڈکنز تھے. بہت عمدہ ایکسپلینیشن، بہت عمدہ نریشن اور منظر نگاری کے بادشاہ ہیں وہ. لیکن اسی منظر نگاری کے ساتھ کہانی کا قتل بھی ہوتا ہے. کیا آپ ایک چیز کو ایکسپلین کرتے کرتے 7-8 صفحے کالے کر دیں تو ریڈر بیچارہ اس قدر بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انٹرسٹ، اپنی گرفت لوز کر دیتا ہے. اور ڈکنز کے ہاں بھی یہ ٹریجڈی موجود ہے، ماں سوائے ایک ناول کی جس میں جکڑ بند تگڑا ہے. انقریب ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، A Tale of Two Cities. عبداللہ حسین کے بارے میں دوسری رائے یہ بھی رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ ایک شارٹ سٹوری کے رائٹر ہیں. یہ 500 صفحے کا ناول وہ لکھ تو بیٹھے لیکن ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور ہر زخیم کہانی لگتا ہے عبداللہ حسین کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے. باغ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، نادار لوگ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. لیکن اسی رائٹر کی ایک کہانی، چھوٹا ناولٹ ہے، آپ پڑھیں آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اردو میں شاید اتنی تگڑی کہانی، میں کہانی کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر ایک جکڑ بند ہے، وہ مختصر کہانی ہے، اس کا نام ہے قید. قید آپ کو اس لیے پڑھنی چاہیے کہ جب آپ اداس نسلیں پڑھیں، نادار لوگ یا باغ پڑھیں تو آپ کو عبداللہ حسین کی کہانی نویسی پر شک ہوگا کہ عبداللہ حسین ایک کمزور کہانی نویس ہے. اپنا شک رفع کرنے کے لیے آپ کو ان کا ناولٹ قید ضرور پڑھنا چاہیے. پھر ایک اور ناولٹ ہے نشیب، بہت خوبصورت کیریکٹرائزیشن ہے اس میں، لیکن انجام اس کا بھی تقریباً ایسا ہے جیسے آپ یوں سمجھیں جیسے کھوکھلا ہوتا ہے کہ رائٹر کو خود نہیں پتا. اور اس پہ انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ کہانی ایک سٹیج پر آ کر آپ کے ہاتھ سے یوں نکلتی ہے کہ آپ اس کو پکڑنا چاہیں بھی تو نہیں پکڑ سکتے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسے پتنگ کی طرح چھوڑ دیں، ہوا کے دوش پر چھوڑ دیں، پڑھنے والا خود اس کو انٹرپریٹ کرتا پھرے گا. اسی طرح ظفر اقبال صاحب نے اپنی شاعری کے بارے میں ایک جگہ فرما رکھا ہے، کہتے ہیں کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن، کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن، سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں. سر میرا بھی ایک تبصرہ ہے جی. اے فلم والے گجر نہیں پروڈیوسر، ہاں جی، یہ تدے رائٹراں نوں پوچھ رہے ہیں فلم دا بینڈ اپ کی ہے سب دس دے. میرے دماغ 'چ او تینوں بھائی برین ہیمرج ہو رہی سی کہ کو پوچھاں گے، پھر دماغ 'چ ایک مار دے تے پھر دسدا ہے. یہ گجروں کو یا ان پروڈیوسرز کو جو عام لوگوں کے لیے فلمیں بناتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک عام بندہ جو ٹکٹ خرید کے آیا وہ ہر صورت جاننا چاہے گا کہ اس کی اینڈنگ کیا ہے. حتیٰ کہ اینڈنگ چینج کرواتے ہیں، ہیپی اینڈنگ کروائیں جی. آپ ہیرو کو مروا رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض اوقات اچھا مشورہ یہ جو پاپولر سینٹیمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق کے آصف کی فلم مغل اعظم تباہ ہو رہی تھی اگر وہ انارکلی کو چنوا دیتے دیوار میں. یہ محبوب صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. آپ اینڈنگ اس کی ایسے کریں کہ آپ سب کو یہی شو کریں کہ چنوا دیا گیا ہے کیونکہ تاریخ یہی ہے. لیکن حقیقتاً آپ ایک سرنگ کھود کے اس کو نکلوا دیں اس میں سے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا. تو سر انارکلی واقعی ایگزسٹ کرتی تھی؟ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ انارکلی واقعی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ تو ایک ڈرامے کا کردار ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک ٹیکنیک کی سمجھ ضرور آتی ہے. بھائی جی میرے نال فیملی اسی واپس بھی جانا ہے. تسی کی آس ہوں لے ڈکن نو کھڑکن نو بھی واپس بھی جانا ہے، آئے بھی اسی ٹریکٹر تے ہیں. اچھا جی، انہاں دی گل سن لو بزرگ آ جی نال انہاں دے بچے. اے بچیاں نہیں ان کی بیویاں ماموں. یہ تہاڈیاں بیویاں نے؟ اے میری بیویاں نے تے اے بھی بیوی ہے.
बीवियां तो की मुराद है तेरी? ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। बड़ी तो की मुराद? अच्छा, तेरा तो छोटी है मैं। वो इज्जत के मकाम पे रखते हुए आपको इज्जत से, यानी ये मेरी बेगम साहिबा हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। वैसे भी तो बहुत सीनियर है ना, तो इनको ऐसी इज्जत से बुलाएंगे ना। चुप करके बैठी, मैं तेरे दस की है तू। अच्छा इतने गैर महरम बैठे ने, इतने लड़ना ना। मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? मैं तो आने नहीं जा रही थी। चलो निकलो यहाँ से, मैं जा रही हूँ ना। अच्छा ये मेरी अम्मियां भी ने। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹਨ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਡਕੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? अच्छा जनाब, मैं तारुफ करवा दूं इनका। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है नईम, उसके दो बुजुर्गान हैं, अय्याज बेग और नियाज बेग। तो ये उनमें से उसके चचा अय्याज बेग हैं और इनकी दो बीवियां हैं, इनको बहुत तंग करती हैं। इनके पास पहले बड़ी जमीन थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन खत्म होती गई और जमीन भी इन्हें इत्तफाक से एक वाक्य के तहत मिलती है। एक अंग्रेज है जो इनके नाम कर जाता है, इनके बुजुर्गों के। तो आहिस्ता आहिस्ता कहानी करते, लेकिन ये चूंकि इस कदर तवील कहानी है, इसका अहाता आप वन लाइन में कर ही नहीं सकते। मैं कोशिश करता हूं कि नईम एक गांव की रहतल से आशना नौजवान जो बाद अज़ां फौज में चला जाता है और जाकर बहादुरी के झंडे गाड़ देता है, उसे विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी है। वापस यूरोप जाता है, यूरोप से वापस आता है तो बड़ी उसकी आवभगत होती है और अजरा नामी एक अमीर जादी के साथ उनका अफेयर चलता है, दोनों की शादी हो जाती है। जैसे यानी एक आम सी जगह से उठकर एक नौजवान एक खवास में, अशराफिया में जाकर शादी करता है और बड़ा शानदार अफेयर होता है इनका। तहरीके पाकिस्तान भी इसी का बैकड्रॉप है। अच्छा इन्होंने जाके हांडी रोटी भी करनी नहीं। सानू केड़े काम ले बुला लिया जे? मैं गुजारिश कर रहा हूं आपको, हमने सिर्फ अलामती तौर पर आज इनवाइट कर रखा है। हाँ तुसी शो तो बाद इथे टाकी टूकी भी मारनी है। बहुत चटाकियां मार दी। असि तेन भी बहुत अच्छा मारनी है। अच्छा मेरी गल सुन लो, ये तमीज नाल कहना है। तमीज नाल ही आओ, बहुती गल ना करे। तू वड्डी तू तो चुप रह। वे किन्नी क वड्डी है, तेरी मां नाल वड्डी है मैं। भाई बाकायदा दहशतगर्दी का शिकार है ये कैरेक्टर। ए तुसी दहशतगर्द किन्नू किया है? आपको नहीं कहा, आपको एक मिनट, उन्होंने बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा नहीं, उन्होंने मैंने छेल के रख देना इतने। नहीं नहीं प्यार बहुत कर दिया ने। क्या प्यार करती हैं, हर रोज इनके घर से लड़ाई की आवाजें आ रही होती। ये बहुत लड़ाका औरत है, मेरे पीछे पड़ गई है। तू चुप रह, तू कोई बदतमीज है। मैं बदतमीज हां। मैं तेरे फायदे की गल कीती है। अच्छा ਜਿਹੜੀ छोटी है ना वो गल करके तुम कोट पाओगी। सर अब्दुल्ला हुसैन को शोहरत जो है वो इसी किताब से मिली है। जी जी ऐसा ही है। मैं समझता हूँ ये बात उनके लिए नेगेटिव भी साबित हुई, क्योंकि ये भी उस चीज का शिकार हो गई। ये भी एक अजीब गोरख धंधा है। कोई चीज जो आपकी शोहरत का बायस बनती है, फिर आप उस खौल से निकल ही नहीं पाते। ये तो खैर पाकिस्तान के एक नॉवलिस्ट हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नॉवलिस्ट मारियो प्यूजो। जी सर। बहुत बड़ा राइटर जिसने गॉडफादर जैसी शोरा आफाक किताब लिखी, उसके साथ भी यही कुछ हुआ था। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मरवाती हैं। इसी तरह ही बानो कुदसिया का नॉवेल आया राजा गिद्ध, तो उस नॉवेल ने उड़ा के रख दिया। बहुत शानदार नॉवेल था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहां पे थी। उनका दूसरा नॉवेल आया हासिल घाट, काफी सालों के बाद आया, लेकिन उसने काफी मायूस किया लोगों को। असी कोई किताबां वाली दुकान ते बैठे यार इसी वजह से तुम्हें मार पड़ी। ये सारे कैरेक्टर ना करो राशन लेना है। अबे बातें कर रहे टका टका की, तेरे सिर पे बाल इतने नहीं जितने हमारे मुरब्बे होते थे। हाँ अब आज मजा लेंदी मुरब्बे दा। हां तेन बड़ा मजा आंदा ओदियां गल्लां दा। मेरी गल ते कोई जवाब नहीं देंदा। तो मुकना प्रोग्राम कर। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। मैंने अब्दुल्ला हुसैन को लब पवे ना, साडा तो बेड़ा घर की कर गया है। अब्दुल्ला हुसैन ने बेड़ा गर्क लिखे है सो। तुम्हारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, बल्कि तुमने अपना बेड़ा खुद गर्क किया है। सारा दिन ये बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। सारे घर के काम हम करते हैं, बदतमीजियां करता है, बैठा रहता है। केड़ियां बदतमीजियां? एहो जी गल्लां तो पब्लिक ही कर से। केड़ियां बदतमीजियां नहीं? आपके साथ भी ये बदतमीज रहता है। मेरे नाल बदतमीजियां करे, जुत्तियां ना फेरा मैं इन्नू। ये सारा बेड़ा घर अब्दुल्ला साहब दा होया है। जो तो मेरी बीवी है सी, एनु मछली आने की लोड़ सी। अबे कमबख्त मारे, मैं तो खुद रो रही हूँ अपने नसीबों को, तुम्हारे पेश पड़ गई मैं। अच्छा मैनू लगता है कि मैं पहलवाना नाल ब्याह कर लिया। अच्छा कैसा खुशकिस्मत आदमी, 12 घंटे इन्हू पंजाबी च मार पैंदी, 12 घंटे उर्दू। अच्छा जी, अब्दुल्ला हुसैन साहब का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लायलपुर से था,
जो फैसलाबाद बना बाद में। चुनांचे फैसलाबाद के जो बहुत बड़े सपूत हैं, जिनमें खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब भी शामिल हैं, ये उसी फहरिस्त का एक कैरेक्टर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਫੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਸਨ और वेले इन्ने साल ਤੁਸੀਂ सोचो कि जिन्हें इन्ने सफे लिखे। अच्छा, इस बात का भी सच्चाई के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है कि जिस जमाने में ये नॉवल कंसीव किया उन्होंने, वो काफी वेले थे। मियां वाली में सीमेंट फैक्ट्री बतौर एक केमिस्ट ये काम किया करते थे। और कहते हैं मैं 8 घंटे काम करता, जी भर के 8 घंटे सोता, बकिया 8 घंटे मैं क्या करता। मैंने सोचा कि मैं एक रोमांटिक सा नॉवल लिखूं। तो नॉवल लिखते 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 फिर ये उस रोमांटिसिज्म को फरामोश कर बैठे और इसमें उन्होंने तारीख डाल दी, वर्ल्ड वॉर के हवाले डाल दिए, 3-4 मुख्तलिफ ट्रैक्स डाल दिए, जिसकी वजह से फिर ये ओवर एक्सपैंड कर गए। चाचे नजीर नु ते अब्दुल्ला साहब फसा गए ने। चाचा नजीर कौन? मैं यहाँ हो रहा है तो नहीं चाचा नजीर। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਰਬਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। अच्छा जी अब्दुल्ला साहब, मेरा तो सबर ही है। चाचा वैसे तेन की सुझी है? ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 2 ਸੁਝੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? अगले सफे देखो किधर मैंने प्यार भी करते हैं कि नहीं? कोई नहीं करती। अच्छा, थ्रू आउट मार ही है। मार बिल्कुल ख्वारी की तरह। ये ख्वारी तुम्हारी किस्मत में थी काफी ज्यादा। चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਏਜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ में वे केड़ी में बड़ी सा वे तेरे नालों 10 साल छोटियां। खाना खराब हो गए, बेड़े गर्क हो गए ने मेरे। अबे कमाल मारे 2 साल छोटे बड़े हैं। ये भी छोटी काकी कम से कम ये साल की है। ये कमाल मारे नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ओ भाई अब्दुल्ला किथे रोवे नावल लिखन नो। वेलकम बैक। खुदी नजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको ले चलेंगे उलन बटार। उलन बटार मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। और सच पूछें तो मुगलों के जो जद्दे अमजद थे वो यहीं से आए थे। आपको पता है ना कि मुगल अरबी में मंगोल का बिगाड़ है। अरबी में मंगोल को मुगल कहते हैं। ये शहर पहलवानों का शहर मशहूर है और 2011 में रेसलिंग फेस्टिवल यहाँ पे मुनक्किद हुआ, जिसमें 6002 पहलवानों ने शिरकत की। तो ये सर, ये सारे वहीं के थे? नहीं, मुख्त पूरी दुनिया से आए थे। पूरी दुनिया से आए। 2 पूरी दुनिया से आए थे, बाकी उतों दे सन। और इसी शहर के वस्त में मेरे बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी, मेरा हीरो, उसके नाम से मंसूब एक चौक है जिसे चंगेज खान चौक कहते हैं। अच्छा जी, ये शहर एक खूबसूरत दरिया के किनारे वाक़े है और दरिया का नाम है दरियाए टल। ये बड़ा फजूल नाम है शहर। की मसला की है शहर लो? पहले ना दो उलन पठान। उलन बटान नहीं, उलन बटार। शहर का नाम है टल, दरिया का नाम टल, रिवर टल बड़ा मशहूर है। सूबे का नाम टर्न। यहाँ का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसका नाम है चंगेज खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उधर डरता जानता ही कोई नहीं होना। अच्छा, चंगेज खान को तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरह आप बताते हैं तो वो तो तारीफें उस तरफ चली जाती। इसलिए कि तारीख से नाबलद है जो उसे पसंद नहीं करता। ये सवाल किसी होर नु करना, उधर चपेड़ा ना खा लेना। और साडे जद्दे अमजद दा ओ जद्दे अमजदी। अच्छा जनाब, इस मुल्क की आबादी है 29 लाख, जबकि यहां पर जंगली घोड़ों की तादाद है 30 लाख। सर, इसकी क्या वजह है? मुल्क की आबादी कम है और घोड़ों की आबादी ज्यादा है। घोड़ा इन लोगों का रोमांस है। जितने शानदार राइडर्स ये हैं, इस वक्त कम से कम रुए जमीन पे कोई नहीं। एक जमाना था अरब्स इस लेवल के राइडर्स होते थे, और अरबी घोड़ा, ताजी घोड़ा जिसको कहते हैं, वो इन घोड़ों के लेवल का घोड़ा होता था। आप अगर इस बैकड्रॉप पे बनी एक आध कोई फिल्म ही देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मंगोलिया है क्या। आप द मंगोल देख लें, द मंगोल बहुत ही शानदार फिल्म है। फिर एक और फिल्म है टारस बुल्बा। टारस बुल्बा एक बहुत बड़ा कबायली सरदार था
اور بہت بہادر آدمی تھا. تو اس میں آپ کو گھوڑے اور تیر اندازی کی اہمیت پتہ چلے گی کہ اس کلچر میں اس کا لیول کیا ہے, اس کا رول کیا ہے. پھر دنیا کا 5واں اور ایشیا کا سب سے بڑا صحرا, صحرائے گوبی. صحرائے گوبی, صحرائے گوبی میں ایک بہت بڑی ڈیزرٹ سفاری ہوتی ہے, وہ رستہ اسی شہر سے جاتا ہے. واہ. پھر دلچسپ بات, دنیا کی سب سے بڑی ڈربی ریس, وہ پتہ ہے کس قدر طویل ہے؟ جی سر. 1000 کلومیٹر. اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے دوسری ڈربیاں. ہے تے گھوڑا پینچر نہیں ہوندا, اینا دوڑدا بیچارہ. نہیں, شاہ سوار ہر 40 کلومیٹر کے بعد گھوڑا تبدیل کرتا ہے. اور جب بھی رات پڑتی ہے تو رات لازمی ہے کہ صحرا میں, جنگلوں میں چرواہوں کے ساتھ گزارنا, یہ لازمی ہے اس ریس کے لیے. سر یہ ریس کتنی دیر تک چلتی ہے؟ 2.5-3 سال چلتی رہتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بذات خود ڈیزرٹ سفاری ہے, ایڈونچر ہے. آپ جب بھی اولن بٹار جائیں, ایک منٹ نام مطلب اتنے گھوڑے لے, اور یہاں کی کرنسی ہے ٹگریک, یعنی کہ اتنے دی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے 1 روپے میں 23 ٹگریک ملتے ہیں. تسی تو 2 کروڑ لے جاؤ, تسی صدر ہو اس ملک دے. کئی بار لوگوں نے رولا پاتا, میں ستا پیا تھا, میرے کہے نے تگریک کٹ لیتے. بڑا غریب ملک ہے سر. نہیں اتنا غریب دریا ہے نا جو ٹال لے. اچھا جی, آپ نے جب بھی اولن بٹور جانا ہو, اسی کیوں جانا, مینوں یہ دسو نا, کوئی پاگل ہے یا انہوں نے اتنے کو بھوپی بھی ہے. اچھی چیز ہے ناصر بھی, ایکسپلور کرنا چاہیے. میں ایتھوں پڑھ کے درو ایتھے سٹ لے, یہ دس دیا. یہاں پر 2 کوہانوں والا اونٹ بکثرت پایا جاتا ہے, بیکٹریل. اس کا میلہ, اس کی ریس, وہاں پہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے یہ اونٹ. تو فلم سٹار ہے, اور فلم سٹار بھی ہے. بہت سی فلموں میں اس اونٹ نے بڑا کمال کیا. پھر یہاں کے تیر انداز اپنی مثال آپ ہیں. اتنے کوئی گڈیاں گڈیاں نہیں ہے, کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے گا, اتنے گھوڑے پائے جاندے نے, اتنے نیزے ہے نے, اتنے تبریک ہے نے. نویں ایٹم گڈی ہے, اونٹ ہے جی 2 جگہ بڑی ہیں اتو. 2 جگہ جی, 2 کوہانے, کوہان, 2 کوہان. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ سن کے بہت خوش ہوں گے, وہ کیا سر؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈائناسور فٹ پرنٹ یہاں سے ملا. یہ شہر کوئی چڑیا گھر ہے. یہ تو تسی جاؤ گے نا تب پہلے تمہیں گھوڑا ملے گا, اس بعد اونٹ تمہیں سلام کرے گا, پھر تمہیں ڈائناسور کھا جائے گا. یہ 42 انچ بڑا فٹ پرنٹ تھا, 42 انچ, کم از کم اتنا, بلکہ اتنا. یعنی ناصر صاحب دے منہ چ ڈائی جی. کر لو, اتنے آ جاؤ, اتنے آ کے ناپ لو. اچھا جی, اب آئیں خوابوں کی طرف. اور جنہیں ماشاءاللہ اتنے گھوڑے نے نا, اتنے ریسٹورنٹ تے ڈشاں بھی بڑی مزیدار ہون گیاں. پٹھے گوشت, لوسن پلاؤ, حق مسالہ. اچھا جی, یہاں کی ایک ڈش ہے کھور کھوگ. انہاں کول کوئی چنگا نام نہیں ہے گا. یہ ڈش کھوتا بناوندا ہے. نہیں یار نہیں, کھور کھوگ بہت لاجواب مٹن کے پسندے ہیں, پسندے. اچھا جی, مٹن کے, دیکھو نا مٹن کا سن کے اسے تسلی. مٹن کے پسندے دہی اور مسالوں میں اچھی طرح انہیں میرینیٹ کرتے ہیں, اور تسی نیزے نہ کھانے نے, اور انہیں زیتون کے تیل میں فرائی کیا جاتا ہے, واہ جی واہ, اور سٹیم کیا جاتا ہے ہلکی سمر پہ. یہ سٹیم کے اندر ایسا بنتے ہیں کہ خشک, جس طرح ہنٹرز بیف ہوتا ہے نا, بالکل اس طرح بن جاتے ہیں. پھر انہیں آپ نے آلو اور گاجروں کے ساتھ مکس کر کے کھانا ہے. سر سویٹ ڈش نہیں ہے یہاں کی کوئی؟ گھوڑی کے دودھ سے 2-3 بڑی اچھی سویٹ ڈشز بنتی ہیں. پر گھوڑے نو پتہ نہ لگے. یار یہ بڑی قبائلی سوسائٹی ہے, آج بھی ویسی کی ویسی ہے. آپ وہ فلم دیکھ لیں نا, ایک دفعہ میں جو کہہ رہا تھا ٹارس بلبا, آپ دیکھیں کہ اس میں جب بھوک لگتی ہے اور صحرا میں یا جنگل میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو, تو ایک خاص جگہ پر گھوڑے کی ران کے اوپر کٹ لگا کے اس میں سے خون پیتے ہیں. کئی دفعہ گھوڑا تو ٹک لا کے خون پی رہا. تو یہ وہ قبیلہ ہے. سر چنگیز خان کے علاوہ یہاں پر اور کوئی فیمس پرسنالٹی؟ تو جا کے دیکھ لینا اتھے. چنگیز خان, قبلہ خان, ہلاکو خان, یہ لینڈ آف خانز ہے. خانز, خان از اے ٹائٹل آف ریسپیکٹ.
सरदार को खान कहते हैं और द ग्रेट खान चंगेज खान है। और ये जो इनकी डर्बी रेस है ये एक ट्रिब्यूट है वो सफर जो चंगेज खान ने किया था 1000 मील का। उसने इस स्कैटर्ड नेशन को यकजा किया था, तमाम ट्राइब्स को इकट्ठा कर दिया था। और ये खिदमत ऐसी है कि ये कौम कभी उसे नहीं भूलेगी। सर इसमें कोई वजीर आजम भी है? अच्छा जी, आप में से कोई मंगोलिया जाना पसंद करेगा? सर मैं जाना चाहूंगा। तेरा मसला की है? क्यों जाना चाह रहे हैं? और तुम्हें क्यों डर लगता है यार? तो सर एक मिनट ठहर, जब तुम दस नहीं रहे होते घोड़े से ज्यादा ले। अच्छा, घोड़े की सवारी तो मैं भी करता रहा हूं। सर वाकई पप्पू बड़ा वड्डा घोड़सवार सी। नहीं यार, ये क्या ये घुड़सवार ऐसे होते हैं? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्यों? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khwateen Hazrat, आज का गाना हमने लिया है फिल्म बाजी से। निहायत शानदार कंपोजिशन सलीम इकबाल की, लिरिक्स है अहमद राही की, गाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद जी। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। सहमे सहमे हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, सहमे सहमे हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, सोए सोए हुए नगमात ने अंगड़ाई ली। खुद से शर्माए हुए उनके जहां तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, उनकी यादों से महकने लगे वीरान ख्याल। लेके दामन बहारे वो खिज़ां तक पहुँचे। बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। सुपर सुपर। वेलकम बैक।
खबर है कि शहर में मेहदी हसन बरादरान की परफॉर्मेंस ने मकबूलियत के अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या एमन के साथ इंसाफ कर रहे हो। वाह वाह वाह, वाकई एमन के साथ बड़ा इंसाफ किया। भाई की एमन के साथ बड़ी यादें वाबस्ता है। अच्छा एक दफा भाई एमन के साथ इंसाफ कर रहे थे, अच्छा, गार्ड ने पकड़ लिया। हाँ? एमन ने खप आती सी। इसका क्या मतलब है? भाई एमन जरा ऊंचे सुरों में गाते हैं, हाँ। गार्ड ने बड़ा मारे और कहा इतने शोर न करी, किसे एमन दिया बचिया उदो भी इसी तरह का मुंह बना। देखो भाई दा बड़ा तोते कच्चे आप उसकी बातों में लगे हैं, एमन की बात हो रही है। हाँ जी एमन, आप अता करें ना, अभी एमन अलाप कर रहे थे आप। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। वाह जी वाह। एक दफा का वाकया है। ओह, गाने की तारीफ तो कर लेने दिया करें, एक दफा का वाक्य है। मैं रशीद अत्रे को ट्रिब्यूट्स पे करना चाह रहा था, रियाज शाहिद को, आप ऐसे खाम का बीच में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हांगकांग में जो जैकी चैन है, उसने हमें बुलवाया। भाई उसके फिल्मों में बैकग्राउंड देता है, अच्छा, चीखों का। भाई आराम से दे देता बैकग्राउंड। नहीं भाई ते बिल्ली छड़नी पैंदी है, और ज्यादातर आवाज बिल्ली दी। भाई कोई आम आदमी नहीं, बड़ा फजूल आदमी। यार मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, या तुम पागल हो या हमें पागल करना चाहते हो। भाई ज्यादातर फंक्शन पागल खाने का था। आफ्ताब साहब, मैं पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जरदारी साहब ने मुझे खुद ऑफर की है। यानी कह तो रिजाल का आलम देखिए कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे ये साहब मिले। अच्छा, तो आपका मुकाबला किसके साथ है? जरदारी साहब ने कुक्कड़ दे नाल। और हमें यकीन है कि जीत कुक्कड़ की होगी। कह रहे हैं कुक्कड़ दे पुत्रा, इनको बताओ, मेरा असल तारफ करवाओ। भुट्टो साहब की वजह से भाई ने बड़े कोड़े खाए हैं। वाह जी, वाह वाह, बड़े वर्कर होंगे उनके। नहीं, इन्होंने उनका पर्स उठा लिया था। भुट्टो साहब ने भी 2 घंटे बांध ही रखा। अच्छा, सवाल ये है कि अगर भुट्टो साहब ने बांधा ही था तो कोड़े कैसे लगे? कोड़े तो ज़िया-उल-हक के दौर में इंट्रोड्यूस हुए थे। जिस रात मार्शल्ला लगा, भाई बंधे हुए थे। अच्छा, ज़िया-उल-हक ने कहा इस चोर दे पुत्र नु कुटो, इन्हें तो मेरा भी कट लिया है। छोटे भाई अवामी चोर हैं। ये तो फजूल बातें किए जा रहे। अभी एक आइटम पेश करूं। आइटम? भाई यहाँ अभी आपको कलाबाजी भी लगा के दिखाया। अबे सुर की बात हो रही है, सुर के बच्चे, जरा मिलाइएगा। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, दिल उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न की देवी ने भी नजरों से गिराया। गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत न जुड़ाया। एक रात जो उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं कि इश्क होता है, सबको होता है, और मुझे भी हुआ। और ये गाना तो मुकम्मल कर लो। असल में ये गाना मेरे हालात की नक्शाकशी करता है। आहा। एक रात वो भी मुझे सोते हुए छोड़ गई। बस फिर होटल वाले ने भाई नु बन लिया। क्यों? ऐसे कोई नहीं सन। तो भागी क्यों? वो डर गई थी। वो कैसे? जब उसे होश आया उसने भाई को देख लिया। तो फिर तुमने क्यों उससे मोहब्बत की? मोहब्बत तो हो जाती है, तो कहो ये कूड़ है, मोहब्बत पूछ क्यों दी है?
भाई की लवर भाई का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी आती थी गिफ्ट लेके आती थी, बहुत ज्यादा। खाने पीने की चीजें, क्या? चने लेके आती, कभी मरूंडा लेके आती, कभी गचक। असल में भाई की माशूक भी को मांगने वाली थी। वो भाई की मोहब्बत थी, भाई उसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे। अक्सर पटूसियां मारते थे। एक दफा खुशी में भाई गलत पटूसी मार बैठे ते गोल गप्पे वाली रेडी दे उत्ते डिग पिया, कोने पे बन लिया। भाई को देखिए चादर कितनी सूट करती है। हाँ जी। भाई चादरें भी बेचता है। हमारे ज्यादातर प्रोग्राम स्टेशन पे होते हैं। भाई का अपना लंडे का काम भी है। वैसे हमने आज तक नहीं सुना कि लंडे में कुछ चादरें भी बेचता। एक बचपन का वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारे घर एक अंग्रेज आ गया। ठीक। हमने समझा ये मौसीकार है। वो कौन था? वो असल में डार्वन था। डार्वन की नजर भाई के ऊपर पड़ी। ऐसे? उसने कहा कि चंद दिन के लिए मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा। अब भाई ने कहा तू उंजी ले जा। अब भाई ने डार्वन दे तरले कीते, बल्कि डार्वन नु आने दा किराया भी। डार्वन भाई को अपनी लेबोरेटरी में ले गया। भाई ने जाते ही पहले तेजाब पिया, उसके बाद यूरेनियम पिया, फिर पोटाशियम पिया, फिर उसे भाई चल गया। जी हिरोशिमा च बकवास हुई सी वो भाई की वजह से। डार्वन ने भाई नु वो गाला कढ़िया, और मजे की गल गाला भी उन्हें पंजाबी च कढ़ी। क्या अनवर अटोर दी गिट कर गया। यार कोई गाना सुनाओ प्लीज। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हंसते कसम हो गई। अच्छा यार आप उसको मारते क्यों हैं? देखें, मैं तो वही करूंगा जिस तरह मैंने मौसीकी सीखी है। आपने कैसे मौसीकी सीखी है? मुझ पे भी यही कुछ होता था। यानी तशद्दुद होता था? आपको फिर पता ही नहीं, अब्बा जान तबीयत के बहुत सख्त थे। अच्छा। निहार मुंह उठते ही भाई के कान पकड़वा दिया करती थी। वो क्यों? ये तो फजूल बात किया जा रहा है। वो तो कभी कभी अम्मी ने भी कान फड़ा दिया। आजकल की लड़कियां लड़कों ने तो मजाक समझा हुआ है। ये को आम काम नहीं है। हमने उस्तादों की खिदमतें की हैं। मैंने 2 साल आलम लोहार के साथ भी गुजारे। फिर उन्होंने भाई को बहुत मारा पीटा। क्यों मारा पीटा? भाई ने उन्हें चिमटा बेच के जलेबियां खा ली। उनके पास इतने चिमटे थे जे एक कदा बिक गया थे कीड़ी गल हुई। मैंने तो खिदमतें की हैं उस्तादों की। साल पूरा गुलाम अली का बाजा उठाया मैंने। चोरी? इसका क्या मतलब? गुलाम अली साहब ने पर्चा भी करवा दिया। अब्बा जान ने भाई के लिए बहुत मेहनत की, भाई को रेडी पे डाल के मांगते भी रहे हैं। अब्बा जान चाहते थे कि भाई कुछ न कुछ बन जाए। फिर एक दिन सुबह हुई तो भाई बतख बन गया। क्या फजूल बातें कह रहे हो? ये मौसीकी कोई आसान काम नहीं है, ये जोर लगाना पड़ता है। सही बात है, बहुत जोर। भाई एक दफा ज्यादा जोर लगा बैठा, भाई दा पिता पाट गया। भाई ने फिर प्लास्टिक का पिता लगवाया। क्या फजूल बात है? कहाँ से? साइकिला वाले को। अजय भी उधर 150 रुपया देना। यानी 150 रुपए का पिता? पिता तो 50 रुपए का है। अच्छा। 100 रुपए दी हवा परवाई। और मेरी गल सुन पिते दे बच्चे, भाई का ऑपरेशन भी 4-5 घंटे होता रहा। उन्हें भाई नु पानी हले टप चुपा। ये सब कुछ साइकिल वाले के पास हुआ? जी, चौक में होता है। पहले उसने भाई को रगड़ा है, उसके बाद सलोशन लगाया है, फिर भाई को 2 घंटे हीटर पे बिठाया। भाई का दिमाग का ऑपरेशन भी साइकिल वाले नहीं किया। उसका भी एक अलग तरीका था। पहले उन्हें साइकिल मार के भाई ने बेहोश किया। आप साहब यकीन करें, मैंने जब भी रियाज किया जंगल में किया, और इस बार बराज़ील के जंगल में मैं गया तो ऐसे ही मैंने बाजा खोला है और आवाज लगाई है। ऊपर से आदम खोरों का सरदार आ गया। जंगल के सरदार ने भाई को रियाज करते हुए देखा तो उसने दावत दी कि हमारे कबीले में चलें। अच्छा। हम सरदार के पीछे चल पड़े। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अच्छा। 5-7 दिन चलते रहे। वो भाई से कुछ सुनना चाहते थे। अच्छा। भाई ने फिर उसको वो सुनाई। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने कहा खोते थे बच्चे, जेठी दूर जाना सी ते मामा रक्षा करा ले।
आखिरकार मैं और सरदार तो बैठ गए एक सवारी पर। तो ये क्यों नहीं बैठा सवारी पे? यही तो हमारी सवारी थी। सरदार ने भाई को रेस दी और दौड़ा दिया। भाई को एक छोटा सा इंजन भी लगा हुआ है। ऐसी फजूल बात कर रहे हो। 10-12 घंटे हमने सफर किया तो वहाँ जाते ही सरदार ने भाई को बांध दिया। अब क्यों बांधा? भाई ने जाते ही एक बूढ़ी औरत को जुगत कर दी। कहते क्या तेरा बुढ़े घर में अरगा मुंह। वो सरदार की दादी थी। सरदार ने कहा मैं इसको कत्ल करूंगा, शेर के आगे डालूंगा। मैंने कहा इसको कत्ल न करना, शेर के आगे डाल दो। यार इसका क्या मतलब? कत्ल ना करना, शेर के आगे डाल देना। आगे तो भी सुने। यकीन करें दहशतनाक मंजर था। लो जी, अब शेर की शामत आई। सरदार ने भाई को उठा के शेर के पिंजरे में फेंक दिया। हाँ, बस फिर चीखें निकल गई। जाहिर है चीखें शेर की निकली होंगी। नहीं नहीं, इस दफा भाई की। यानी भाई की चीखें निकल गई? हाँ जी। फिर भाई चीखे मारता जाए, हम सब साइड पे हो गए। अच्छा। शेर भी साइड पे हो गया। तो ये चीखें क्यों मार रहा था? भाई शेर की वजह से चीखे नहीं मार रहा था। और क्या? भाई दा हाथ जंगले च आ गया था। क्या फजूल पक कर रहे हो? असल बात करो, क्या क्या मुश्किलात हमें होती हैं। हमारा ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जब हम इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए जाते हैं, अच्छा, तो क्या हमारा हशर होता है, तलाशी होती है, बार बार पूछते हैं कितों आए हो, कौन हो। अभी सूडान में हम गए। सूडान? हमारे ज्यादातर फंक्शन या सूडान या सांगले में होते हैं। भाई की उन्होंने बहुत तलाशी ली। पहले दरवाजे में से गुजारा, फिर स्कैनिंग मशीन में से गुजारा, फिर भाई के ऊपर उन्होंने खतरनाक कुत्ते छोड़े। कुत्ते भाई को देख के हैंड्स अप हो गए। फिर उन्होंने भाई को सूंघना शुरू कर दिया, फिर भाई ने उन्हें सूंघना शुरू कर दिया। अच्छा। आखिर कुत्ते को लो चर्च बरामद हो गई। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।